ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਲਿਕਾ ਅਰੁਣ ਖੜਕੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਜੇਪੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ तमाम ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ये गुरु साहिबान की कृपा से अब तबीयत सारी तबीयत ठीक है, पहले से बेहतर है। अभी परफेक्टली ऑलराइट तो नहीं हूँ, लेकिन जो है 70-75% ठीक होगा। ਤਾਂ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, 75% ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 75-25। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 75-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, कांग्रेस इज वेल, कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस देखिए, जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं तो थोड़ा सा उन बात होती है कभी कभी, और सिद्धू साहब ने भी कुछ बातें कही और लोगों ने भी कुछ बातें कही जी। और इसलिए पार्टी लीडरशिप ने उन सब बातों का संज्ञान लेते हुए एक 3 सीनियर मेंबर्स की कमेटी बनाई है, जिसमें मल्लिका खड़गे पहले हमारे लीडर अपोजिशन थे लोकसभा में, अब राज्यसभा लीडर अपोजिशन है, बहुत सीनियर लीडर हैं कर्नाटका से। जो है जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, वो भी पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं और कई बार एमपी रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। ਰਾਵਤ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੋਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲਵਾਓਗੇ? देखिए, लोकतंत्र के अंदर एक पार्टी में चाहे कोई कितने बड़े पद पर हो, वो किसी के भी छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी दरवाजे बंद नहीं कर सकता। और नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, बड़ी संभावना है, पॉसिबिलिटीज उनके साथ हैं राजनीति की, तो उनके लिए तो कोई दरवाजे बंद कर ही नहीं सकता, करेगा ही। और कभी कोई मोमेंटरी तरीके से कोई बात किसी ने कह दी है तो उसको गांठ बात करके नहीं रखा जाएगा, और कुछ गांठ होगी भी कहीं तो हम उसको खोलने का काम करेंगे, कमेटी उसको खोलने का खुलवाएगी। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਠ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 3 ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ये सारी बातें जो है जब हम बैठेंगे बात करेंगे लोगों से, ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी। और फिर एक बात
मैं सारे लीडर साहिबान से कहना चाहता हूँ, आप यहाँ से आगे की तरफ को देखना है। पीछे क्या हुआ, अब मुझे कोरोना हुआ, मैं 16 दिन आईसीयू में रहा, 16 दिन अंदाज लगाए, 16-17 दिन तो जी। लेकिन अब मैं केवल आईसीयू में किस हालत में था उन्हीं दिनों को याद करके नहीं रह सकता। मुझे आगे के लिए काम करना, देखना है, तो मुझे अब आगे की तरफ देखना पड़ेगा। तो पिछले हमारी एब्सेंस में कुछ बातें हुई, कुछ आपस में तेजी कुर्सी रही और दोनों तरफ रही, उसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो वो पार्टी को न भुगतना पड़े उसके लिए रावत साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। देखिए, क्या बादल इत्यादि हमारे लिए उतनी ही रेलिवेंस है उनकी, वो एक अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, उससे ज्यादा कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की किसी लीडर के लिए, कांग्रेस की सरकार के लिए, उनकी और उनके लिए हमारी वो नहीं है। हम प्रकाश सिंह बादल जी का जरूर जो है व्यक्तिगत तरीके से आदर करते हैं, लेकिन अकाली दल जो विशेष तौर पर इस समय है वो जनता का आदर खो चुका है, जनता में उनके लिए मान सम्मान चला जा चुका है। तो कांग्रेस की किसी नीति को किसी तरीके से भी वो इन्फ्लुएंस नहीं करते, हमारी सरकार को कोई इन्फ्लुएंस नहीं। आपके विधायक ही ये बात बोल रहे हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2016 में जो 2017 में वादे किए थे कि साडी सरकार आउण दे उत्ते ही बादल परिवार नूं कंन तो फड़ के अंदर करांगे, कहंदे वो वादे कित्थे गए? कि सिर्फ वो उदों चोणां वास्ते वादे कीते गए सीगे? बेअदबी दा इंसाफ 4.5 साल हो गए अजे तक नहीं मिलिया। कहंदे लोकां दे विच असीं की मूंह लेके जावांगे कि बेअदबी दा इंसाफ असीं क्यों नहीं दिवा पाए? हमारा इरादा हमारा बिल्कुल साफ है, हम बिल्कुल साफ उसके हैं कि बेअदबी के मामले में गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी की गई है और उसके बाद जो गोली चलाई गई है, जो दोषी लोग हैं उनको जो है हम अंदर करेंगे। मगर कानून के अंदर आप जानते हैं कि राजीव गांधी जी के हत्यारे अभी भी जो है वो उनको सजा नहीं मिल पाई है। तो कानून का भारत कानून से चलता है। जो अपराध हुआ है, अपराधी पूरे पंजाब को मालूम है, हम लोगों को मालूम है, उन पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन एक व्यवस्था के तहत होता है। एसआईटी दायर की गई थी, हाई कोर्ट ने कुछ कहा उसमें, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, नई एसआईटी भी गठित कर दी है। और जब बातचीत करेंगे, सिद्धू साहब से बात करेंगे, दूसरे साहब से बात करेंगे, तो उसके समाधान के विषय में भी कोई रास्ता निकालेंगे। उसके प्रगट सिंह ने आवाज उठानी शुरू की तो कैप्टन संदीप संधू उनको फोन कर देते हैं कि तू बंदा बन जा, नहीं तो तेनू ठोक देवांगे, तेरे खिलाफ पढ़ना असी खोली बैठे हैं। एक ओएसडी का चुने हुए नुमाइंदे को ऐसे फोन करना आप कैसे समझते हैं इसको? देखिए, मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, आप अलग अलग विषयों पर अलग अलग पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी सामान्य सी एडवाइस है सारे पंजाब के नेताओं को, पिछला सब भूल जाइए, हमारे पास आइए, हमको बताइए और उसका समाधान जो है ये कमेटी निकाले। और वो समाधान होगा 2022 में सबको साथ खड़ा करने का। जब साथ खड़ा होना है तो कभी कभी पिछली बिगड़ी हुई बातों को भूलना पड़ता है। और क्या लगता है इतना आसान होगा उनके लिए ये चीजों को भूलना? एक विधायक को ऐसे धमकी भरा फोन आना? उनको सत्ता भी भूल जानी पड़ेगी। यदि उन लोगों ने तय कर लिया है कि सत्ता में नहीं आना है, तो फिर वो पुरानी बातों को करते रहें, उसकी लक्ष्य। पर क्या समझते हैं रावत साहब, आपका एक लंबा तजर्बा है, आपने
पॉलिटिक्स में एक लंबा तजर्बा आपने आपका है, और जिस तरीके से ये कांग्रेस का कल्चर भी नहीं है कि किसी की आर्म ट्विस्टिंग की जाए, अगर कोई बोलना शुरू करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा दी जाए। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई शुरू हुई, प्रगट सिंह को फोन आते हैं, सुखजिंदर रंधावा की गैंगस्टर की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाती है, चरणजीत सिंह चन्नी का पुराना कोई मीटू का मामला है वो उठा लिया जाता है। तो अपने ही विधायक और मंत्रियों की आर्म ट्विस्टिंग आप कैसे देखते हैं इसको? ये सब चीजें यदि हुई हैं तो ये बैड टेस्ट में है, लेकिन हम जो बुरा स्वाद है उसको याद नहीं करना चाहेंगे, हम अच्छी बातों को याद करना चाहेंगे। और अच्छी बात यह है कि सिद्धू जी ने विधानसभा में सरकार की बड़ी तारीफ की। अच्छी बात यह है कि कैप्टन साहब ने मुझसे एक से ज्यादा बार कहा कि सिद्धू साडा भरा है, छोटा भरा है, अपना पटियाला का बच्चा है और मैं उसको गले लगाऊंगा और उसके साथ उसको चाय पे बुला रहा हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अब तो वही पटियाले के बच्चे को बोल रहे कि चोन मैदान में आ जाओ, उसी पटियाले के बच्चे को रावत साहब। एक सेकंड, कैप्टन साहब ने उनको चाय पे बुलाया, तो ये याद करने लायक ये बातें हैं कि कैसे गले मिले, कैसे जप्पी डाली, ये याद करने लायक बात है। वो कड़वी बातें हैं, होंगी, किसी मोमेंट में किसी ने कह दी होंगी, उनको याद करके पार्टी नहीं चलती। चाय पे बुलाने के बाद उनको चुनौती भी दे दी कि पटियाला से चोन लड़ना चाहते हैं तो आ जाए मैदान में। ये कोई पुलिस थाना नहीं है जिसमें इस तरीके के प्रश्न होते हैं, ये कोई कोर्ट रूम नहीं है जिसमें कोई वकील किसी से जिरह कर रहा हो। मैंने एक साफ सी बात आपसे कह दी कि पार्टी के हित में प्रत्येक व्यक्ति को पीछे यदि कुछ किसी के लिए बेअदबी हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं, उनको दोनों पक्षों को भूलना पड़ेगा और उन गलतियों को न दोहराने की बात सोचनी पड़ेगी और आगे की तरफ को देखना पड़ेगा। और जो नेता आगे की तरफ को नहीं देख सकता है तो फिर वो नेता सत्ता में आने की बात भूल जाए। तो मतलब सीधा सीधा ये सीधा सीधा चेतावनी है कि जो व्यक्ति पुरानी बातें नहीं भूलेगा वो सत्ता में नहीं आएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ यदि गवर्नमेंट लानी है तो फिर सबको मिल करके चलना पड़ेगा और पिछली कड़वी बातें भूलनी पड़ेगी। तो ये मान के चले कि 3 मेंबरी कमेटी की पंजाब प्रभारी की ये चेतावनी है। एक चीज याद रखिए, लोकतंत्र के अंदर बदले की भावना से या पुराने द्वेष को याद करके आगे नहीं बढ़ा जाता है। लोग बड़ी बड़ी चीजें, लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। वीरेंद्र पाटिल इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के हित में था, वीरेंद्र पाटिल जी को उन्होंने गले लगाया। तो ये बदले की भावना तो मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर भी पाई जा रही है, वो भी इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी ये शर्तें लागू रहेंगी कि पिछली बातें भूल जाए, नवजोत सिंह सिद्धू को जो बोला है वो भूलें और उनको साथ गले मिलाएं? सबको भूलनी पड़ेगी, सबको भूलनी पड़ेगी। आप जनता के दरबार में जा रहे हैं तो आप ये सब चीजें लेकर के नहीं जा सकते। आपको जनता के दरबार में जो क्या करना है, कुछ अच्छा किया होगा उसको याद करके जाना है, कुछ आगे अच्छा करने की प्रॉमिस करनी है और कुछ हमारे वादे हैं जो पूरी परिस्थितियों की वजह से जो है पूरे नहीं हो पाए हैं, तो उनको कैसे आगे पूरा करना है, उस पर एक रूपरेखा बना करके जाना है। पंजाब के भलाई के लिए सोचना है, उस पर काम करना है। तो हम जो है किसने किसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट की, कभी कोई बयान दिया, कभी किसी ने किसके खिलाफ कोई ट्वीट कर दिया, उन सब चीजों को लेकर के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी की अदालत है। ये कोई जो है कोर्ट रूम या पुलिस का वो नहीं है जहां इस तरीके की जिरह की जाए और इसी को उलझा जाए। कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के मंत्री ये कहना शुरू हो चुके हैं कि जो कैप्टन 2017 वाले थे वो 2021 या 22 वाले नहीं रहे हैं। कहते कि अब
अगर 2022 में चोन लड़नी है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कैपेबल नहीं है। जो छवि थी, जो जिनके चेहरे के ऊपर वोटें पड़ी थी, कहते अब लोगों के बीच में वो भरोसा नहीं रहा। तो क्या आप लगता है कि वही कैप्टन 2022 में प्रेजेंट कर पाएंगे? देखिए, किसी ने भी मुझसे कोई बात कही नहीं है, और किसी को कोई बात कहनी होगी तो हमारे सामने आकर के कहेंगे, कमेटी में कहेंगे। किसने कहीं अपनी पत्नी से क्या कह दिया, अपने दोस्त से क्या कह दिया, चाय खाने में क्या कह दिया, चंडू खाने में किसी ने क्या कह दिया, इन सब बातों पर ये सब बातें हरीश रावत की मीनू में नहीं हो सकती। हरीश रावत साहब, रावत एक कैमरा बात थोड़ा नीचे जानता है, करवा दीजिए। एक सेकंड सुन लीजिए। जी। हरीश रावत ये जानता है कि कुछ ऐसे बयान आए हैं जो बयान कांग्रेस के इंटरेस्ट में नहीं थे, जिससे कटुताएं बढ़ रही थी। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है 3 लोगों की, और उस कमेटी के सामने आकर के ही लोगों को अपनी बात कहनी पड़ेगी, और जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन सबको मानना पड़ेगा, पार्टी के दायरे के अंदर मानना पड़ेगा। हम कांग्रेसमैन से डील करेंगे, हम जो कांग्रेसमैन नहीं है उससे हम डील कर ही नहीं सकते, वो हमारे यूरिडिक्शन से बाहर। लेकिन जो कांग्रेसमैन हैं उनको कांग्रेस की और कांग्रेस लीडर की बात माननी पड़ेगी, सोनिया जी का आदेश मानना। आज हाई लेवल की मीटिंग हुई है, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि आप वो कोई बात साझी करेंगे, पर क्या अहम फैसले उसमें से लिए गए हैं? क्या लीडरशिप को बदलने की कोई बात हुई है? और क्या विधायकों के साथ भी आने वाले समय में कोई बातचीत होगी? देखिए, मैं 2022 में कैसे कांग्रेस जीते इस पर सब लोगों से, पूरी पंजाब की कांग्रेस की लीडरशिप, आज कांग्रेस की लीडरशिप का मतलब पंजाब की लीडरशिप, क्योंकि भाजपा आउट ऑफ कंटेस्ट है और आप बिखरी हुई है, और जो अकाली दल है वो डिस्क्रेडिटेड है। तो इस समय पंजाब कांग्रेस को बहुत जिम्मेदारी से काम करना है, पंजाब के लिए, आगे के लिए एक अच्छे रोड मैप पर काम करना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो सब लोग जो है पुराने गड्ढे खोदने में नहीं रहेंगे, और उसमें से सड़ान निकालने में कोई अपना समय जाया नहीं करेंगे, बल्कि इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जो जो लोगों के मनों में जो गिले शिकवे हैं वो दूर किए जाएंगे अगले हफ्ते? क्या उनको बुलाया जा रहा है दिल्ली? सबको बुलाया जा रहा है, सबसे बात कर रहे हैं हम। ये सोमवार से पीसीसी प्रेसिडेंट से बातचीत करके शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या जो सबसे पहले जो बागी सुर जिन्होंने अपनाए हुए हैं, नवजोत सिद्धू, परगट सिंह, सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत चन्नी, प्रताप बाजवा, रवनीत बिट्टू, सुरजीत धीमान, ऐसे लोगों को पहले बुलाया जाएगा या फिर किसी हल्के के हिसाब से एमएलए उसको बुलाया जाएगा? मैं एक बात जानता हूं, मेरी नजर में नवजोत सिंह सिद्धू बागी नहीं है, वो कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे भविष्य की संभावनाएं हैं, और एक बहुत ही होनहार नेता है जिनकी कांग्रेस को जरूरत है। सुक्की भाई जो है वो एक कांग्रेस परिवार, बहुत ही बहुत अच्छे काबिल मंत्री हैं। प्रगट सिंह ओलंपियन है, जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो हम उनको जो है वो हमारे कांग्रेस के विधायक, हमारे नेता, उस रूप में आमंत्रित करेंगे। इसलिए ये बागी के रूप में नहीं, हमने कहा है कि सबसे मिलेंगे, और सिद्धू साहब से हम विशेष तौर पर कमेटी बातचीत करेंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह से कब मुलाकात होगी? क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप तो वही है। उनसे भी बात करेंगे, और उनसे भी दिल्ली में ही बात करेंगे, जहां हम सबसे बात करेंगे वहीं उनसे भी बात करेंगे। रावत साहब, जब से आपने पंजाब प्रभारी का इंचार्ज आपने लिया है, तब से आपने एक बात तो जरूर ये कही है कि कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का भविष्य है, और लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि कैसा वो भविष्य होगा, क्या जिम्मेवारी उनको दी जाएगी, मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा 2022 में, या कोई और जिम्मेवारी उनको दी जाएगी? देखिए, ऐसी बातों में मैंने कहा ना कि माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु आवे तब फल हो। तो जब जब समय आएगा तो आपको सब दिखाई देगा। सिर्फ राजनीति के अंदर धैर्य रखना पड़ता है, और जिस स्टेज में नवजोत सिद्धू हैं, मैं भी उस स्टेज में रहा हूं, और मैंने भी पार्टी के न्याय को स्वीकार किया है।
कभी कभी न्याय मिलने में देरी होती है, लेकिन जब आप एक पार्टी में होते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं और उसके आलोक में आपको चीजें तय करनी। रावत साहब, पंजाब कब आ रहे हैं? इंतजार आपका बहुत सारे कांग्रेस वर्कर भी कर रहे हैं। मैं भी, बल्कि कमेटी भी आना चाहती थी, लेकिन फिर ये हुआ कि कोरोना, उसकी दिक्कतें हैं, कई तरीके की बातें हैं, तो इसलिए हम दिल्ली में मिल रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी पंजाब आऊंगा। तो जैसे मैं विधायकों की बात कर रहा हूं, मंत्रियों की बात कर रहा हूं, ग्राउंड लेवल के भी अब तो जो लोग हैं, वर्कर हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इन 4.5 सालों में हमारी सुनी नहीं गई। बहुत सारे वर्कर भी कांग्रेस पार्टी से परेशान नजर आ रहे हैं। कल 2017 के जो उम्मीदवार थे बठिंडा देहाती के, वो मनप्रीत बादल के खिलाफ जो है वो शिकायत लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पहुंच गए। वो कहते दखल अंदाजी बहुत हो रही है। होता है, हमेशा इसी को कहा जाता है कि भाई जो एंटी। तो रावत साहब, आखिर में सवाल मेरा यही रहेगा कि इस मचे हुए कलेश को क्या कांग्रेस सुलझा पाएगी, हाईकमांड हल कर पाएगी? लेकिन 4-4.5 साल की सरकार के बाद कुछ शिकायतें उठती हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ता आज की वक्त की चुनौती को समझेंगे, और किसी को कोई शिकायत भी होगी तो मैं तो हूं ना, नहीं तो फिर मेरा काम क्या रह जाएगा। मैं हूं। आखिर में कैप्टन अमरिंदर सिंह की हम भूमिका क्या देखें कांग्रेस में? शिकायतें मुझी से होंगी, क्योंकि मैं 2 महीने बिल्कुल संवाद करने की स्थिति में नहीं रहा, तो हो जाती है जी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की 2022 में क्या भूमिका देखें? किसकी? कैप्टन अमरिंदर सिंह की। उनकी भूमिका तो है ना, अभी तो मुख्यमंत्री है ना 2022 में। और आप मुझसे फिर 2024 पूछेंगे, कोई मुझसे 2027 पूछेगा। नहीं, मैं 22 तक ही पूछूंगा। अभी जो है, जो वर्तमान है, वो वर्तमान को हम देखना चाहिए, और आगे भी बात करेंगे। उन्हीं 22 में आखिर मुख्यमंत्री हैं, चुनाव में आगे कौन खड़ा होगा, ये सब चीजें हैं। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਕਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।